اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سبھی لوگوں کو اس جمعہ کی بہترین مجلس میں ایک اور بار بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آج اپنے لمبی چنچوڑے گاؤں کے بستی میں نئے بولے تو بھی 100 یا پھر 150 گھر آئیں مسلمان آ گئے، ہر ایک گھر میں کا ایک مسلمان بھی پکڑے تو خدا کے فضل سے 150 لوگ مسجد میں آنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے سب لوگوں میں جو ہے اپنے کو اتنے لوگوں کو جو ہے چنے اللہ تعالیٰ کے بابا یہ لوگ جو ہیں میرے جمعہ کی مجلس میں سب سے پہلے آپ کو بیٹھیں گے، کیا کریں گے یہ لوگ میرے جمعہ کی مجلس میں سب سے پہلے آپ کو بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمعہ کے دن جو آدمی جتنا جلدی آئے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جب تک خطبہ چالو نہیں ہوتا تب تک جو ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے جو ہے رستے پر وہاں دروازے کے پاس آ کر رکتا بولتے مسجد کے، اور لوگوں کی نوند کرتا بولتے کہ بابا کون آدمی آیا، پہلا کون آیا مسجد میں، دوسرا کون آیا مسجد میں، تیسرا کون آیا مسجد میں۔ پہلا آدمی آیا، جو پہلا آتا ہے اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا آیا اسے ایک کیا بولتے ہیں گئی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسرا آیا اسے ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا کرتے 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 انڈا قربان کرنے تک کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، لوگوں کو دینے والا ہے۔ اور جیسے ہی خطبہ چالو ہوا یا بیان دینے چالو کرے حافظ صاحب یا پھر ممبر پر بیٹھ کو خطبہ پڑھنے چالو کرے انہوں تو لگی کیا کرتے فرشتہ اندر آتا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کو فرشتے جو ہے بیان سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا سنتے ہیں انہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے رسول کی بڑائی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے سو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی باتیں کرتے اس کی شان میں، اس کے رسول کے شان میں، تو وہ سب باتیں کو نہ سنتے۔ تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، جمعہ کے دن جو آدمی جتنا جلدی آئے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اللہ کے فضل سے، ہے کہ 12:30 بجے اذان ہوتی، مطلب اپن 1 بجے تک آنا ہے مسجد میں، 1 بجے تک تو آنا، زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک اپن مسجد میں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے کچھ جمعہ میں جو ہے اپن بات کیا کر رہے تھے کہ وہ پاکیزگی کے بارے میں بات کر رہے تھے نا۔ پہلا بات بھی اپنا غسل کے طریقے کیا ہیں، غسل کا فرض کیا ہے، غسل کی سنت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غسل کا طریقہ کیا ہے یہ بات کریں، غسل کیسا ٹوٹتا، طہارت کیسا ٹوٹتی اس کے بارے میں بات کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ تیمم کے بارے میں بات کریں اللہ کے فضل سے کہ تیمم کب تم کر سکتے، پھر اس کے بعد جو ہے وضو کے طریقے کے بارے میں بات کریں، وضو کرتے ٹائم کیسا کرنے کا، دعا کون سی پڑھنے کا، دعا کیسا مانگنے کا اللہ کو، وضو کرتے ٹائم کو اپنے ہاتھ وہ دھوتے ٹائم کو، پاؤں دھوتے ٹائم کو کون سی دعا مانگنے کا اس کے بارے میں بات کریں۔ تو آج جو ہے نا اپن اسی بات پر جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں اللہ کے فضل سے ذرا دیر بھی تھی اپنے کو کام میں، اس لیے نہیں آ سکے، تو آج جو ہے اپن یہ بات کریں گے کہ بابا وضو ٹوٹتی کیسا، کیا وضو ٹوٹتی کیسا اللہ کے فضل سے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے الگ الگ کا یہی مطلب سب جنے الگ الگ بولتے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، ہے نا۔ جیسا طہارت ٹوٹنے کے بہت سارے لوگ الگ الگ کارن دیتے ہیں، گٹر میں پہنچ گیا طہارت ٹوٹی، سنڈاس پر پہنچ گیا طہارت ٹوٹی، پیشاب کرتے ٹائم کو تھوڑا ارے پینٹ پر گرے ارے اس کے استر میں نماز کو نہیں آ سکتا طہارت ٹوٹی۔ تو ویسا جو ہے نا لوگوں کو وضو کے بارے میں بھی بہت سارے الگ الگ غلط فہمی ہے کہ بابا وضو جو ہے ایسا ٹوٹتی بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وضو جو ٹوٹنے کے پیچھے کے کارن ہیں وہ بہت ہی آسان ہے۔ ابھی وضو مطلب کیا ہے، وضو سے تم کیا کر رہے، خود کے بدن کو پاک کر رہے، تمہارے روح کو پاک کر رہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا اپن غسل کرتے، غسل اگر اچھا ہوا تو وضو اچھی ہوتی، وضو اچھی ہوئی تو نماز اچھی ہوتی، پھر غسل اچھا ہونے کے بعد جو ہے اپن وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد جو ہے وضو ٹوٹتی کیسا ہوا، وضو ٹوٹتی کئی کی وجہ سے جو بھی چیزیں باہر نکلتے اپنے بدن میں سے، کیا جو چیزیں اپنے بدن سے باہر نکلتی، جو گندگی اپنے بدن سے باہر نکلتی اس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹتی۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، ہوا کا خارج ہونا، سب سے سوپا کیا آدمی پا دیا اس کی ہوا خارج ہوئی اللہ کے فضل سے، تو کیا ہوا وہ اس کی وجہ ٹوٹی۔ اس کے بعد جو ہے اسے وضو کرنا پڑے گا، وضو سے فرض ہوا، انہیں نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، انہیں جا کے وضو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے بابا، خون یا پھر پیپ کا بدن سے نکل کر بہنا، خون یا پھر پیپ کا کیا ہونا، بدن سے نکل کو بہنا، وہاں کے وہاں اگر رکا رہے گا تو کیا نہیں نکل کو، اگر ایسا ٹپکے ٹپکے پڑتا رہے گا نیچے، ایسا آتے رہے گا پتھر کو، تو کیا ہوا وضو ٹوٹی تمہاری، ہے نا۔
खून या फिर पीप का निकलने से भी जो है वजू टूटती। दो चीज़ है जो बदन से निकलते। फिर तीसरा क्या है बाबा, संडास को गए, पैखाने को गए, पेशाब को गए, क्या होती वजू टूटती है ना। पैखाने पेशाब को जाको है तो क्या होते वजू टूटती। फिर उसके बाद जो है पैखाने पेशाब के बाद जो है फिर उसके बाद तुम्हें नमाज की हालत में है, अभी नमाज पढ़ने ठहरी सब जने, अभी नमाज पढ़ते टाइम को तुम्हें हंसे मुस्कुराना अलग बात है, ऐसा मुस्कुराए तुम्हें चलता है, लेकिन दांत निकाल को हंसे तुम्हें नमाज की हालत में। हाँ, बिना नमाज की हालत में कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन नमाज की हालत में अगर तुम्हें दांत निकाल को अगर हंसे तो भी जो है तुम्हारी क्या होती वजू टूटती। क्या नमाज की हालत में तुम्हें हंसती छोरंदा पीछे ठहर को एक दूसरे को ढक्कल को जोर जोर से हंसती, वो वजू टूटती, तुम्हारी नमाज नहीं होती। नमाज की हालत में दांत दिखा को हंसना अलाउड नहीं है, वजू टूटती। क्या बात करें वो हवा का खारिज होना, फिर उसके बाद खून पीप का निकल को बहना, पेशाब पैखाने से वजू टूटती। फिर उसके बाद नमाज की हालत में खिलखिला को हंसने से, दांत दिखा को हंसने से वजू टूटती। फिर उसके बाद जो है और वजू कई वजह टूटती वो बा कि वो और क्या है यार, हाँ अगर तारत टूटे रहेंगी, क्या एहतलाम वगैरह वैसे रहेगा तो भी जो है तुम्हारी वजू टूटती। हम बिस्तरी करे रहेंगे तो भी तुम्हारी वजू टूटती है ना। तारत टूट रही मतलब तुम्हारी वजू भी क्या भी टूटी वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है और वजू कई वजह टूटती वो बा, हाँ जुल्की लेते। अभी जुम्मा का दिन है, जुम्मा के बारे में मैं बोलता हूँ। अभी बहुत सारे लोग जो है अल्लाह के फजल से जुम्मा के दिन जल्दी आते, जरा 12:30 बजे 1 बजे आती, वजू कर को आँखों टेका देखो बैठती, क्या करती दीवार को टेका देखो बैठती। शैतान क्या करते हैं, हल्लूच से गुंगी दिलाते, क्या करते हैं हल्लूच ऐसा ऐसा डुलकिया लेते रहते। तुम्हें जरा नजर रखो जुम्मा के दिन ना, खास करके जुम्मा के दिन जो भी लोग बैठे रहते बयान सुनते हो ना, ऐसा ऐसा डुलकिया लेते रहते, ऐसा झटके देते रहते है कि वो कुर्सी पर बैठे रहते नहीं तो कहाँ कोपरे में बैठे रहते नहीं तो बीच में बैठे रहते, उसे डुलकिया आती चुन ध्यान नहीं रहा ना उसका। शैतान क्या करता है हल्लूच गुंगी डालते उसके दिमाग में, क्या तो क्या उसे कर को सुलाते। तुम्हें जुम्मा के दिन देखो, जुम्मा के दिन सबसे ज्यादा नींद आती है लोगों को, जुम्मा के दिन सबसे ज्यादा नींद आती है। वो बयान सुनते रहे नहीं सुनते रहे, घर में भी रहे, जुम्मा के आदान भी चालू रहेंगे ना तो भी तुम ना सुस्ती चालू होती, सुलाने का देखते शैतान। तो जुम्मा के दिन ना ज्यादातर सुलाने का देखते। परसों की बात है, बहुत जने को देखता मैं, अभी नाम नहीं लेता मैं किसका भी। तो ऐसा एक जनाब बयान सुनते सुनते सोए थे, तो मैं उनको ढुलके ले रहे थे, तो बयान होने के बाद उनको बोले जा वजू कर को, भाई वजू कहाँ से टूटती उसी कर को बोले मुझे। मैं बोले वजू जो है ढुलकी लेने से वजू टूटती। पीठ टेके ना तुम्हारी, पीठ टेके जमीन को, थोड़ा भी लिड़े वो नींद आंदे नहीं आंदे खत्म लगे, जरा भी ढुलकी दे खत्म, वजू टूटी और जा वजू कर को आने का। कई कोशिश करते शैतान ने जुम्मा की नमाज जो होती बहुत महत्व की होती है क्या नहीं, नबी की सुन्नत है, फर्ज है आपने वास्ते, तो वो नमाज टूटना उसकी, नमाज उसकी कबूल नहीं होना करको नहीं क्या करते रहते हैं, वो लोगों को सुलाने का देखते रहते हैं, ढुलकी लाते रहते हैं उसकी। तो ये सब चीज़ें जो है वजू टूटते रहते अल्लाह ताला के फजल से, वो बहुत सोपा है। इसके अलावा जो है ना बाकी किसी से भी वजू नहीं टूटती अल्लाह ताला के फजल से। लोग क्या कहते हैं मैं खाना खाया वजू टूटी, इसके ये इन्हें गुड़गे के ऊपर पैंट पहने में इसे देखा वजू टूटी, उससे वजू नहीं टूटते। गुड़गे के ऊपर पैंट पहनने के गुड़गे देखे तो वजू टूटती कर को बहुत सारे बोलते थे। हमें भी बचपन में जब अलार्म को आते थे तो हम लोग बोलते थे लोग, तो ऐसा वजू नहीं टूटती। हाँ फिर उसके बाद जो है हाँ अभी भी बोझ बोलती लोग, गुड़गे देखने से वजू नहीं टूटती होती। और क्या बोलती हो बाबा, ये खाना खाने में वजू टूटती, खाना खाने में वजू नहीं टूटती रहती, फक्त वो वजू क्या बोलते एक दर्जा कम होता फक्त, क्या उसका मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या कहती है नाना उसे वो क्या बोलते थे को, क्या भी मतलब वजू नहीं टूटती लेकिन खसारा क्या तो बोलते थे कुछ, हाँ कसर होती वो वजू, मतलब उसका थोड़ा सवाब जो है कम होता। वजू होने के बाद तुम्हें खाना खाए तो थोड़ा जो है उसका वजू का जो है वैल्यू कम होती, लेकिन वजू रहती हो उससे तुम्हें नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सवाब जो है कम मिलता अल्लाह के फजल से। तो खाना भी खाए तो एक बार वजू करवाने का कितना टाइम लगता है, 2-2.5 मिनट लगती है क्या। फिर उसके बाद और बहुत सारे यही कारण वजू टूटने के। अभी गटर में पो पड़े बच्चे ना खेलते खेलते गंदगी लगी ना वजू टूट, अभी जाते जाते खेलते खेलते गटर में पो पड़ते हैं, गटर में का बॉल काटने गटर में हाथ डालती छोड़ना है कि हाँ, गोटे खेलने के वास्ते जमीन पर लोग थुके सरती उसके ऊपर गोटे खेलती हाँ है नहीं, वो इसी हालत में और मस्जिद में भागते आने का बिना चपला के बिना हाथ धोए, तो ये सब बातें से भी क्या होती वजू टूटते होती, तो वो तब भी वजू कर को आने का है ना। मतलब गंदगी
अंग गंदा हुआ अपना, तुम्हारी वजू टूटेगा नहीं. सबसे सोपे भाषे में येच आहे, वजू काही कोणची तुटते बाबा, अपना अंग गंदा हुआ वजू टूटी. समझे कि नहीं? वजू कई कोई चीज टूटती, सब जने समझा? बोल देखना रामपुरे कई कोई चीज टूटती वजू, बोला. हाँ, हवा खारिज होना. हाँ, दूसरा खून पीप का बहना. हाँ, तीसरा हाँ तारत टूटी तो वजू टूटती. हाँ, फिर और जो हाँ नमाज की हालत में दांत दिखा को हंसने से. फिर पांचवा संडास पेशाब को जाको आने से, है ना. तो ये सब बातें से जो है अल्लाह ताला के फजल से वजू टूटती. इसके अलावा बाकी और दूसरे भी कारणों की वजह से अगर तुम्हारा अंग गंदा हुआ, कोई बच्चा तुम्हारे अंग पर पेशाब पैखाना करे, या फिर तुम्हें किसी पेशाब पैखाने के ऊपर पाँव रखे, या फिर तुम्हारा हाथ गटर में डाले, या फिर तुम्हारा पाँव गटर में गया, हाँ, तो उससे भी जो है वजू टूटती. तो तुम्हारा वजू जो है करना फर्ज है. उसके अलावा जो है तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं होती. तो अल्लाह ताला के फजल से अभी तक अपन बात क्या करें, पाकीज़गी के बारे में बात करें कि बाबा इस्लाम में जो है ना, ईमान के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी एक बार कलमा पढ़ा, तो वो कलमे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरी चीज है वो है नमाज. लेकिन नमाज से भी पहला क्या आता है, ईमान और नमाज के बीच में क्या है, पाकी बटे सो अल्लाह ताला. क्या ईमान और नमाज के बरोबर बीच में है वो पाकीज़गी, 1 इंच का भी फर्क नहीं. ईमान और नमाज के बीच में एक दीवार है, समझो. वो दोनों दीवार, अभी कौन घर बनते रहेंगे तो क्या करती, आजू बाजू के घर भी रहते, उन्होंने क्या करती, कुछ लोग वो दीवार वापरती नहीं तो क्या करती, अपनी एक बाजू सी दीवार बनती. तो वो दोनों दीवारों के बीच में कितना गैप रहते, नहीं उससे भी कम गैप जो है नमाज और ईमान के बीच में. और वत्ते बारीक गैप के अंदर अल्लाह ताला क्या करे, पाकीज़गी को बिटे से, है कि नहीं. तो वत्ते वो बारीक चीज की वजह से तुम्हारा नमाज नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारी बाकी की इबादत कबूल नहीं हो सकती. तो बारीक चीज जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है. तो ईमान के अंदर, ईमान के बाद मुसलमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पाकीज़गी है. क्योंकि अगर पाकच नहीं रहा है उन्हें, तो फिर वो उन्हें ईमान वाला नहीं है. उन्हें पाकच नहीं है तो फिर उन्हें क्या है, ईमान वाला नहीं. तो पाकीज़गी जो है अपने मजहब के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती. मैं पहले भी एक बात बोले थे कि अपने मजहब में बच्चा पैदा होने से लेकर उसके मरने तक हर चीज में पाकीज़गी को देखा जाता. बच्चा पैदा जब होता तब भी जो उसे गुस्ल दिया जाता, तब भी उसे साफ करते, पूरा पाक करते. फिर उसके बाद जब उन्हें मरता, उसका जब इंतकाल होता, तब भी जो है उसे अच्छी तरीके से धुला को, अब बीच पैदा हुए क्या उन्हें, वैसा उसे पाक कर को, सब साफ कर को, उसके नाखून निकाल को, उसके कान में का मैला, नाक में का मैला सब निकाल को, अच्छी तरीके से उसका पेट वगैरह भी साफ कर को, उसे अच्छे कपड़े पहना को उसे दफन करते हैं. तो अपने धर्म में पाकीज़गी को बहुत ज्यादा महत्व है. तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बेसिक जो है ना, गुस्ल कैसा करने का, वजू कैसा करने का, ये जो बेसिक बातें हैं ये सब जने को आना जरूरी है. अगर तुम ना ये अगर मालूम नहीं रहेगा गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, तो तुम्हारी नमाज भी कुछ फायदे की नहीं और तुम्हारा बाकी की कौन सा इबादत भी फायदे की नहीं. क्योंकि वो एक चीज की वजह से, एक पाकीज़गी के एक छोटे से एक अमल की वजह से जो है ना, बाकी के सब बड़े बड़े अमल जो है रुक जाते. तो अपन वो पाकीज़गी के अमल को बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देना पाकीज़गी को. तो अभी पाकीज़गी के अंदर जो है, अभी अपन क्या करें, कई के बारे में बात करें, क्या बोलते, गुस्ल के बारे में बात करें, तयम्मुम के बारे में बात करें, वजू के बारे में बात करें. फिर उसके बाद पाकीज़गी के अंदर और क्या क्या आते हैं, बहुत सारी बात आई पाकीज़गी के अंदर. और एक बात मेरा बोलने का रहा, अल्लाह ताला के फजल से वजू जो है मुंह भर को उल्टी करने से भी जो है वजू टूटती. क्योंकि गंदगी जो है पेट में से तुम्हारे बाहर पड़ रही है, बात रही थी मेरे हाथ से. तो मुंह भर को जब तुम्हें उल्टी करते तब भी जो है तुम्हारी वजू टूटती. तो अल्लाह ताला के फजल से ये सब तो बातें हैं कई के बारे में, तुम्हारी वजू के बारे में और तुम्हारे तारत के बारे में. और उसके साथ साथ बाकी की पाकीज़गी क्या ही मुबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी के बारे में और बहुत सारी बातें बताई, जिसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाबा हर मुसलमान मर्द औरत को जो है अपने नाखून काटना जरूरी है. क्या नाखून काटना जरूरी है. अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बेहतरीन नबी है, पूरे 1.25 लाख नबियों में अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा डिटेल में किसी ने भी अपनी उम्मत को बताए सुनी है. किसी ने भी नहीं इतना डिटेल में नाखूना तक करने का उन्होंने तरीका बता गए से, अपने संडास पेशाब को बैठने का कैसा इसका भी तरीका उन्होंने बता गए से. कितना ज्यादा उन्होंने फिक्र करते थे अपनी. सोचो कि वो अपने मेरी उम्मती का हर एक अमल जो है सवाब में जाना, मेरे उम्मती का हर एक अमल
उन्हें वो पहकाने को जान दे, पेशाब को जान दे, उन्हें सोने जान दे, उन्हें कुछ भी करने दे, उसका अमल जो है, उन्हें कौन सा भी काम करने दे, उसे जो है सवाब मिलना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपन शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की फजल से कि उन्होंने जो है इतनी बारीक चीजें अपने को बताई। तो नाखूना काटने का तरीका उन्होंने क्या बताया बाबा? नाखूना काटते टाइम को जो है सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल से शहादत की उंगली से नाखून काटने चालू करने, सीधे हाथ की शहादत की उंगली से जो है नाखून काटने चालू करने। इस तरीके से भी नहीं काटने का नाखून की तुम्हारी उंगली को तकलीफ हो, है ना। तुम्हारे कुछ लोग क्या करते पूरा अंदर से काटते, वो तभी काटना जरूरी नहीं है, ऊपर ऊपर से काटो। क्या वो कई बात शेयर की खाना खाते टाइम को अपने हुजूर की सुन्नत क्या है? उंगलियों को चूसने की सुन्नत है। और नाखून अगर तुम्हारे रहेंगे, अपन क्या करते हैं खजा लेते हैं या फिर जमीन में से कुछ तो उठाकू लेते हैं, है ना। तो क्या होता है नाखून के अंदर गंदगी वैसी चलती, मट्टी बोलो, धूल बोलो, है ना, खजाने के बाद कीटाणु बोलो, सब वो नाखूना के अंदर जाती नहीं। तो अपनी नबी की सुन्नत क्या है? खाना हाथ भी धोए तो नाखूना में से जाते क्या? हाथ भी धोए तो नाखूना में का मैला जाता है क्या? नहीं जाता। तो अपने हुजूर के एक बात सर बोले कि बाबा खाना खाते टाइम को तुम ना चूस नहीं करता उंगलियां, तो उंगलियां चूसते टाइम को वो नाखून में अगर गंदा रहा तो वो भी तुम्हारे पेट में जाने वाला, तुम्हें बीमार पड़ने वाले। तो अपने हुजूर कितना बारीक सोचें, देखो अपने वास्ते उम्मतियों के वास्ते कि नाखून किस लिए काट, उन्होंने नाखून तक काटने का तरीका बता के कि वो बोलते जड़ से भी मत निकालो कि तुम ना तकलीफ हो, और इतने ज्यादा बड़े भी मत करो जिससे तुम ना तकलीफ हो, है कि नहीं, जिससे तुम बीमार पड़ो। फिर नाखूना काटने का जो है शुरुआत सीधी उंगली, सीधे हाथ के शहादत की उंगली से शुरू कर को यहाँ तक आने का, करंगली तक सीधे हाथ की। फिर वहां से और ये करंगली को आपको दाहिने हाथ के वहां से लेको शहादत की उंगली तक आने का। फिर उसके बाद सीधे हाथ के अंगूठे का, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून काटने का। इतना सोपा उन्होंने बता दिया अल्लाह ताला की फजल से। फिर उसके बाद पाँव का भी वैसा चाहिए, पाँव का काटते टाइम को दोनों पाँव ऐसा स्ट्रेट रखने का। फिर उसके बाद सीधे पाँव के करंगली से लेको दावे पाँव के करंगली से करंगली तक जो है सीधा क्या करने का, नाखूना काटते जाने का। कितना डिटेल में अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए, देखो तुम्हें बता है क्या नहीं। तो ये जो है ना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपन शुक्र अदा करना कि बाबा उन्होंने इतनी बारीक चीज अपने को बता गए अल्लाह ताला की फजल से। और जो आदमी अपने नाखूना बढ़ाता, जो आदमी या फिर औरत अपने नाखूनों को बढ़ाएगी तो कयामत के दिन जो है अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की दीवारों को खुरेदने का गुनाह देगा। बोलते क्या? जहन्नुम की दीवारों को खुरेदने लगेंगे बोलते, उसे नाखूना पूरे झिझ गुजेंगे, उसके खुकर खुकर को उसके उंगली की हड्डियां तक गएंगे। लेकिन अल्लाह क्या करेगा, और उसे हाथा और वापस लेंगे, और उसके नाखूना बढ़ेंगे, और उसे फुकरने लगेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक छोटे से अमल की वजह से अगर तुम्हें करेंगे तो तुम्हें क्या होने वाला, तुम्हें बीमार नहीं पड़ने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिंदा होने वाली है क्या नहीं। और उसके साथ साथ जो है तुम्हें गुनाह से भी बचने वाले। हाँ, क़यामत के दिन बहुत खतरनाक गुनाह जो है उसके बारे में मिलने वाला है कि तुमने अल्लाह ताला क्या करने वाला, लगाने वाला है, जहन्नुम की दीवारों को खुरेदने लगेगा बोलते, जिसके नाखूना बड़े रखता था आदमी। आजकल फैशन है, आजकल लड़कियां लड़कन का जो है फैशन समझ को नाखूना बढ़ाते, लेकिन अपने अंदर जो है नाखूना बढ़ाना हराम है। पाकीज़गी के मसले के वास्ते और तुम्हारी खुद के सेहत के वास्ते जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जो है हम सभी लोगों के लिए एक सुन्नत बना कर रखे सोई। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने नाखूनों को निकालो। फिर उसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और पाकीज़गी के बारे में उन्होंने क्या बताया कि मूंछ के बाल जो है, क्या मूंछ के जो बाल है वो बढ़ाने का नहीं, मूंछ के बाल कहीं को नहीं बढ़ाने का। उसके पीछे कारण क्या है, जब तुम्हें सांस लेते तो जो कीटाणु जो रहती हवा में के वो सब जो ही तुम्हारे मूंछ को लगते बोलते। साइंटिफिक रीजन भी है उसका। जब तुम्हें सांस लेते तो सब यहाँ को रुकता, और सब सांस छोड़ते तो नाक में के भी जो है यहाँ चाकू बैठते सब जम, है क्या नहीं। फिर उसके बाद तुम्हारी अगर मुच्छी बड़ी रही, पानी पीते टाइम को मुच्छी के बाल पानी में जाती, हाँ, खाना खाते टाइम को मूंछ को खाना लगते, है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलिए भी क्या कहा, मूंछ के बाल बढ़ो लेकिन इतने ज्यादा मत बढ़ो, थोड़े बारीक करने का, मूंछ ज्यादा बड़ी नहीं करने का, है ना, जिससे तुम ना खाना खाते टाइम को भी तकलीफ नहीं होना, खाना खाते टाइम को भी मूंछ के बाल नहीं लगना खाने को, और पानी पीते टाइम को भी मूंछ के बाल नहीं लगना। हाँ, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक के बाल भी कम करने के वास्ते बोले, पाकीज़गी के अंदर आता हो। फिर उसके साथ साथ जो है बगल के बाल काटने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सुन्नतों में तो ऐसा है कि बाबा बगल के बालों को वस्त्रे से नहीं, जड़ से खींच को निकालो कर पाए। हदीस पाक के अंदर मकूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले थे कि बगल के जो बाल है वो जड़ से खींच के निकालो, और शर्मगाह के जो बाल है उसे वस्त्रे से निकालो। क्या, बगल के जो बाल है उसे खींच के निकालो, और जो शर्मगाह के बाल है उसे वस्त्रे से निकालो। हाँ, अगर तकलीफ रहेंगे तो बात और है, क्योंकि बगल के बाल जब बढ़ते ना तो उसी आदमी जो है बीमार पड़ता बोलते अल्लाह ताला की वजह से।
तो तुम्हारे अंदर वो बीमारी बढ़ना नहीं, तुम बीमार नहीं पड़ना, तुम्हारा स्किन के डिसीजेस नहीं होना, हाँ, तुम पाक रहना बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसका भी तरीका बता गए थे। देखो कितना बारीक बारीक बात है, हाँ, और बहुत आसान तरीका है। पाकी मतलब पाक रहने के वास्ते, साफ रहने के वास्ते ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गुस्ल लेने का है, गुस्ल के 3 फर्ज मालूम रहना अपने को, और एक बार अपन समरी करेंगे। गुस्ल सबसे पहला क्या आता अपने अंदर, गुस्ल आता। गुस्ल के फर्ज क्या है बाबा, पूरा आंख को इतना पानी बहाओ आंख पर कि बाबा एक भी बाल बराबर जगह सूखी नहीं रहना। दूसरा क्या बोले से, गरारे करो, रोजा रहेंगे तो कुल्ली करो, हाँ। तीसरा क्या बोले से, नाक में पानी डालो, खत्म तुम्हारा गुस्ल हुआ अल्लाह के फजल से। फिर उसके बाद वजू क्या बोले से, गुस्ल के बाद वजू आती। वजू में क्या बोले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाबा, हाँ, दोनों हाथों को अच्छी तरीके से दो, अपने ये क्या बोलते हैं उसको, कोलियां तक दो दोनों हाथों को, हाँ। फिर उसके बाद दोनों पाँवों को जो है टखनों तक दो, हाँ। चेहरे को जो है ये कान की लौ से ये कान की लौ तक, हाँ। सर पेशानी के बाल से दाढ़ी के नीचे के बाल तक अच्छी तरीके से धो बोले से, हाँ। फिर उसके बाद जो है पाँव सर का मसा करो कर को बोले से, है ना। तो फिर उसके बाद जो है कुल्ली करो कर को बोले से, फिर उसके बाद नाक में पानी डालो कर को बोले से। कितना सोपा है, बहुत आसान है अल्लाह ताला के फजल से, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, तयम्मुम का तक तरीका बता गए बाबा। अगर पानी नहीं रहा है तो क्या करने का, पानी नहीं रहा तो साफ मिट्टी की मदद से जो है तुम तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का तरीका क्या है बाबा, 2-3 बार जमीन पर हाथ ये करने का, हाँ, हाथ को मारने का जमीन पर पाक मिट्टी पर। फिर उसके बाद वो धूल को झड़ाने का अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो है उस धूल की मदद से जो है हाथों को कोनी तक अच्छी तरीके से पूरी ये लगाने का, धूल लगाने का। फिर उसके बाद जो है और एक बार ये कर को पूरे चेहरे पर एक बार हाथ फिराने का। मतलब बहुत आसान तरीके बता गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ में तक जो है सूर्य बकरा के अंदर दूसरे या फिर चौथे या फिर 5वें पारे के अंदर बताए हुए कि तयम्मुम का तरीका जो है वहां पर बताए हुए। तयम्मुम का सबसे पहला हुक्म जो है चौथे या फिर 5वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने जो है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी उम्मतियों के लिए उतारा। तो एक पानी का मसला आया था और पानी नहीं मिलने की वजह से हमें अभी क्या करना, नमाज का वक्त तो वैसे, तो वहां पर अल्लाह ताला ने क्या लगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में तयम्मुम का जो है क्या भेजे बोलते, पूरा तरीका और पूरा एक आयत उतारे बोलते कि वो तयम्मुम करना। अगर तुम ना पानी नहीं मिलता रहेगा तो तुम्हें तयम्मुम करो, और अगर पानी तुम ना मिला इतना पानी की होगा जिससे तुम्हें वजू कर सकते तो तुम्हारा जो है तयम्मुम भी टूटता। तो अल्लाह ताला के फजल से ये सब बातें जो है अपन कवर करें, हाँ। फिर उसके साथ साथ बाकी भी पाकीज़गी के बारे में जो भी बात आते हैं उसके बारे में भी बात करें। अभी जो है ईमान और नमाज के बीच में क्या था, पाकीज़गी थी। अभी पाकीज़गी का पूरा मसला खत्म है। अल्लाह ताला के फजल से सब अपन बातें करें। तो अगर अभी भी यहाँ पर मौजूद हजरात को अगर अभी भी वजू के बारे में, गुस्ल के बारे में या फिर पाकीज़गी के बारे में कोई भी सवाल पूछने करेगा तो मस्जिद में मुझे भी पूछ सकते, या फिर अपने जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको भी पूछ सकते, या फिर कभी भी तुम ना जब वक्त मिलेगा तुम ना कुछ अड़ता रहेगा तो मुझे पूछो, मैं आगे बारी भी इंशाल्लाह तुम ना समझा को बोलता। तो आगे जुम्मा से जो है इंशाल्लाह अपन नमाज से जो है शुरुआत करेंगे। बोलते कि बाबा नमाज का फर्ज अल्लाह ताला के फजल से जमीन पर कैसा उतरा, वो पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे, शबे मेराज के बारे में, और वहाँ से जो है पूरे नमाज के तरीके और नमाज के आगे की सभी बातें, सभी चीज़ें जो है मैं आपको आगे की जुम्मा के बयानों में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ो।